Cool. Hi Shanu, how are you? I'm good. आप कैसे हो शशांक? How are you? All good, long time. हाँ man, like almost I think so 15-20 दिन के बाद हम कनेक्ट कर रहे हैं. Correct, हाँ. I Yeah. think last time तभी किया था. Cool. ठीक है bro. So just for the viewers who are watching this, just to set the context, Mm-hmm. Shanu has been in sales for the past 3 months and उसके पहले setting में थे Shanu. And we have been working together for what 9 months साथ में किया होगा हमने. Almost हाँ Setting and 8-9 months. तो Shanu is here to share his experience कि कैसा रहा Yeah. and all. So cool. Probably the best place to start would be by telling कि before coming into closing and Mm-hmm. setting, like what were your challenges जो आप face कर रहे थे overall general in life and all. Bro, to be honest with you, like I was the person जिसको 6 मंथ पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि there is something like closing जो exist करता है in the world. I was completely new to sales, मतलब zero idea. And I'm the same person when I was in my college. I never wanted to be in sales. I always wanted to be in finance, trading करना है मुझे. I never wanted to be in sales. I was that kind of Yep. person. उसके Hmm. बाद you can say fortunately like I ended up being with Hardik. Like I've been working with Hardik since almost now 11 months, like 8, 9, 10, 11 months. I've been working with him. Hmm. So I joined him Yep. as a content writer, you know. उसके बाद फिर like started with a setting. Now then I got Hmm. promoted as a closer. So from there the things have started. तो उसके बाद it is going so far. तो I would say कि मतलब Perfect. आई एम द पर्सन जिसको जीरो आइडिया है सेल्स का, जिसको था आई वुड से Hmm. 3 months बैक. एंड आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग एंड ऑल, आफ्टर लर्निंग एंड ऑल, आई एम हियर आफ्टर 3 months. Awesome, man. Just to give context to the viewers as well, Hardik ka like interview with Hardik. I was working with Hardik for a very long time. Uska interview is also on the channel. You can watch it. Uh-huh. So I met Shanu over there, and then we started training together overall. Yeah. So just let's go in a story mode, I would say, and take everybody like step by step कि क्या हुआ. Yeah. So initially started as a content writer, then setting के लिए Hardik told me कि let's train Shanu setting के Mm-hmm. लिए, Right. right? And then we started out setting का पूरा आपको framework वगैरह सिखाना start Yeah. हुए. Yeah. तो tell me कि आपका वो experience कैसा था? The challenges you were facing back then, जिसके लिए आपको डांट पड़ती थी काफी मेरे से Right, हार्दिक bro. से. फिर उसको ओवरकम कैसे किया एंड जो हमारा प्रोसेस था वो कैसा था. When I was in setting, right, the biggest challenge was जो obviously अगर कोई भी start करता है तो एक जो biggest challenge होता है that is of pain proving. क्योंकि हम्म. इफ यू आर नॉट इन सेल्स आपको पता ही नहीं चलेगा वो प्रूविंग करना कैसे है पेन को. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई दैट पेन, उसके बाद वो पेन प्रूविंग होता क्या है. एंड शशांक, लाइक वेरी ऑनेस्ट विथ यू, जो बेस्ट चीज होती है ना जिससे मतलब विच हेल्प्ड मी अ लॉट टू बी हम्म. दैट दैट पेन प्रूविंग पार्ट, वो था एवरीडे दैट मॉक कॉल प्रैक्टिसेस व्हिच आई हैव डन विथ योर हम्म. टीम. मतलब आप थे, लाइक अदर सेटर्स एज वेल ओवर देयर. तो हम्म. उनके साथ जो वो मॉक कॉल्स होते थे, लाइक आई यूज्ड टू बी सेटर, आप प्रोस्पेक्ट बनते थे. हम्म. लाइक आई वुड से दैट वाज वन ऑफ द मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो कि मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया. डिफरेंट हम सिचुएशंस लेते थे, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट बिकमिंग. एंड उसके बाद राइट. हम वी यूज्ड टू प्रैक्टिस. उसके बाद हाँ, कॉल सुनना, कॉल पे रिव्यूज लेना, कहाँ पे गलतियाँ की एंड एवरीथिंग. तो आई वुड से वो था सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैं पेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था. हम्म. वो जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा प्रूविंग तो होगा ही नहीं. करेक्ट. तो उसके ठीक है. बाद इट वाज कूल. एंड इन टर्म्स ऑफ सेटिंग एंड क्लोजिंग फ्रेमवर्क हमारा सेम ही होता है, द 9 बिलीव्स जो मैंने आपको पूरा सिखाया था, राइट? राइट. तो फॉर यू लाइक हाउ हैज द 9 बिलीव्स फ्रेमवर्क जो हम सीखे थे क्लोजिंग के लिए, हाउ दैट वर्कड आउट फॉर यू ओवरऑल फॉर क्लोजिंग सेटिंग दोनों के लिए. दैट इज ऑल. मतलब वो तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो तो कवर करनी ही है कॉल पे. तो मेन पर्पस ही वो कॉल नहीं करोगे लास्ट में, उनके माइंड में भी कोई फीलिंग्स जनरेट नहीं होगा, कोई इमोशंस ट्रिगर नहीं होंगे, तो एट द एंड ऑफ द कॉल वो काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे. हम्म. राइट. वो ट्रस्ट का आ जाएगा अगर आप नहीं कवर करोगे तो, फाइनेंसिस का आ जाएगा अगर फाइनेंसिस कवर नहीं करोगे तो, एंड ऑल ऑफ दिस जो भी बिलीव्स हैं. तो आई वुड हम्म. से वो जो हमने वन बाय वन करके बिलीव को भी कवर किया था, लाइक वो ट्रेनिंग पीरियड में व्हाट वी आर डूइंग इज कि वी यूज्ड टू कवर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बिलीफ पे फोकस करता है, इसको सबसे अच्छे से कर लेता है. हम्म. उसके बाद विल मूव टू अदर बिलीव्स. तो दैट राइट. वाज द परफेक्ट वे. मतलब वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप करो एंड यू विल बी गुड एट दैट. परफेक्ट.
Cool, Shanu. Another thing that I would want to understand over here is, let's say, can you share some specific moments जहाँ पे you felt कि हाँ, this actually helped me a lot, is specific moment of my journey of closing and setting में वो कौन सा, like what was that moment for you? ब्रो आई वुड से मतलब कोचिंग इज समथिंग जो कि देखो, देर आर ओनली टू ऑप्शंस आपके पास, सिर्फ दो ही रास्ते हैं आपके पास। या तो आप खुद के 3 4 साल 5 साल दे दो, वो टाइम डाल दो, हम्म। राइट? आप मतलब लर्न फ्रॉम हियर, देयर कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं रहेगा। आप यूट्यूब जो मैं लाइक स्टार्टिंग में करते, या फिर जो नॉर्मल मेरे केस में आई वुड से कि मेरे पास गाइडेंस था, यू एज अ मेंटोर, हार्दिक वाज अ मेंटोर एंड एवरीवेयर। हम्म। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूट्यूब, इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेस हैं, यहाँ है वहाँ है, काफ़ी सारे कोर्सेज कर लिए, इधर उधर कर लिए। द थिंग इज कि उससे भी आप सीख लोगे, बट 3 साल 4 साल वो टाइम लगेगा ही, आपके पैसे लगेंगे इन एवरीथिंग, बट वो एक हम्म। स्ट्रक्चर्ड वे में आप नहीं सीख पाओगे। बट हम्म। व्हेन यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, जब आपके पास एक प्रॉपर मेंटोर है, राइट, विथ यू, तो ही इज देयर टू टेल यू एग्जैक्टली, मतलब आपको, आपने एक स्टेप लिया, अब आपको हम्म। दूसरा स्टेप लेना है। सो फार मतलब आपने सेटिंग के वो कवर्स किए, लाइक बिलीव्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप करो, पेन प्रूविंग हम्म। करो, उसके बाद लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आप उसके बाद फोकस करो, लाइक पिच आपको कैसे करना है। अगर आप विदाउट अ मेंटोर आई वुड से, और विदाउट अ गाइडेंस आप करते हो, तो एक अनस्ट्रक्चर्ड वे रहता है। मे बी आप स्टार्टिंग में ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना ट्राई कर दो, करेक्ट। उस पर फोकस कर दो, जो कि आई डोंट हम्म। फील कि वो एक मीनिंग क्रिएट करेगा। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, और वो तभी चीज़ पॉसिबल होता है पाता है जो जिसने वो ऑलरेडी उस जर्नी को कवर कर रखा है, मेक सेंस। राइट? तो आई से कि वो तो बेस्ट था, बीइंग विद अ मेंटोर, वर्किंग स्टेप बाय स्टेप ऑन ईच ऑफ द थिंग्स। जो गलतियां कर रहा हूँ मैं, उस पर तुरंत रिव्यू मिलना, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। सो ओवरऑल ये तो पूरी जर्नी, आई वाज लाइक वेरी ग्रेटफुल ब्रो, आई वाज वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Apart from high ticket sales, like how has this helped you to improve, let's say, your closing skills, income, other areas of your life? उस पे क्या impact आया है after learning this skill? Obviously bro, मतलब when you are at setting, तो you earn less, but हम्म। when you like get into the closing, right, obviously it feels difficult, वो रहता है कि अब कुछ कर रहे हैं, but the thing is कि the income and everything वो drastically increase होता है आपका when you are good at skill। obviously ये first month से तो नहीं हो जाएगा, this is a हम्म। skill, you will be working on that। जैसे in my case, first month 2 months 1 month close थे, and I would say this month I have already shared कि like within a month 5 close हैं। At तो a high ticket price at a point. high ticket, तो made a good like वो amount of money। तो that is हम्म। the, तो that is the thing कि मतलब वो चीज़ें income wise, तो if you are good at this, and if you are a person जिसको एक time freedom चाहिए, थोड़ा सा हम्म। place freedom चाहिए, if you want to work from anywhere in the world, तो I would say this is the best thing जो आप कर सकते हो। and you don't have to worry about money, you don't have to worry about anything, if you are, you'll be good at the skill, पैसे तो बहुत आप कमा सकते हो easily। That's nice. That's good to yeah hear, शानू। yeah सही है। एंड अगर लेट्स से हमने 9 महीने साथ में ट्रेनिंग की है, आई एम श्योर मैं काफी चीजें रिपीट करता रहता था, ये करो ये करो ये करो कॉल पे। mm. व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप अभी भी माइंड में याद रखते हो कि हाँ, ये तो प्रोसेस में मुझे करना ही है, ये एक चीज है जो मैं कभी भूलूंगा नहीं? व्हाट इज दैट वन थिंग? there are there are many things bro, but एक चीज जो आपकी मेरे को हमेशा ये चीज याद रहती है स्टिल, मतलब आपने रिसेंटली भी वो चीज मेरे को बोला है, जब भी डाउट हो रहा हो, या फिर जब भी मतलब रिजल्ट ना मिल रहे हो, या फिर कुछ गलतियां कर रहे हो, गो बैक टू बेसिक्स। चुपचाप अपने बेसिक्स पे चले जाओ आप। बेसिक्स मतलब क्या, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, यू विल गेट द रिजल्ट। तो वही सेम हुआ मेरे साथ भी। एंड ऑब्वियसली कैन मतलब यू शेयर क्लोजिंग दैट इज, एक्सपीरियंस? I have a आई question थिंक काफी here. इंटरेस्टिंग। I have a question here, like this, going back to basics part. How has that helped you manage your energy better after sales calls or when you lost a deal, maybe? एनर्जी पार्ट आई वुड से मतलब ऑब्वियसली जब क्लोज नहीं होता है, यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 1 घंटे कॉल पे, राइट, और उसके बाद वो बंदा मतलब होस्ट कर देता है आपको, या फिर रिप्लाई नहीं करता है, एंड यू लॉस दैट डील। तो द वर्स्ट थिंग अबाउट इज कि आप मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो कि यार, एंड ऑलमोस्ट जब आपके ऑलरेडी मंथ अच्छे नहीं जा रहे हैं, एंड उसके बाद कमिंग बैक टू द एनर्जी पार्ट, मतलब आई वुड से गोइंग बैक टू द बेसिक्स, राइट, तो इट गिव्स यू कि यार जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो चीज़ें सही से कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, एंड
आप ये चीज़ें होता है जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, बेसिक्स फॉलो नहीं करते हो, तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है जो आप अननेसेसरी की चीज़ें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कॉल पे, वो चीज़ करने लगते हो, हम्म। वो चीज़ खत्म हो जाता है कमिंग बैक टू द बेसिक्स। तो आप फिर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वाइज फॉलो करते हो, तो इवेंचुअली फिर से वो रिजल्ट्स आते हैं। आई होप मतलब ये क्वेश्चन करें मैंने कैन सही यू कैन यू आंसर। एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंस जो अभी आप बता रहे थे बेसिक्स पे आने से, क्या जो लास्ट मंथ का रहा है आपका? रिसेंटली लाइक या आई वुड लव टू शेयर माय एक्सपीरियंस। तो हुआ ऐसा, लास्ट 2 मंथ्स वेर गुड, मतलब स्टार्ट मैंने किया था फेब में, मार्च वाज गुड, उसके बाद अप्रैल में लाइक कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस के कारण मेरे को पैसे की भी कुछ ज़रूरत थे, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग, और माय मंथ वाज नॉट गोइंग वेरी ग्रेट। मतलब मेरे को टिल 25th ऑफ अप्रैल आई वाज नॉट हैविंग एनी क्लोजेस, मतलब जीरो क्लोज थे, आई हैव मेड जीरो मनी। तो आई वॉज हम्म। फ्रस्ट्रेटेड, आई हैव मैसेज्ड यू एज वेल कि सर हाँ दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन, मतलब काफ़ी सारे इमोशंस आ रहे हैं माइंड में, काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट होता है जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, राइट। सेल्फ डाउट होने लगता है एंड एवरीथिंग। तो यह आई लाइक थिंक हमारा अगेन, जो रिव्यू कॉल था उसमें भी मैंने यही कहा था, इतना टेंशन हाँ मत लो। हाँ, गो बैक टू बेसिक्स। तो फिर से अगेन यू हैव हाँ। मैसेज्ड मी एज वेल ऑन माय व्हाट्सएप कि चिल, होता है कभी कभी मंथ्स, देयर विल बी बैड मंथ्स, बट आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। तो अगेन आई हैव कम बैक टू द बेसिक्स, वो फिर से सेम चीज़ है, मतलब कुछ भी अलग नहीं करा, सेम पे इम्प्रूविंग पे फोकस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो अनसर्टेनिटी कवर करना है एंड एवरीथिंग, जैसा चीज़ सिखाया था सेम चीज़ों को फोकस किया। हम्म। एंड आई वुड से कि फ्रॉम 27th टिल 31st ऑफ अप्रैल, 3-4 दिन में 5 क्लोजेस, लाइक 2 क्लोजेस इन अ डे। आई हैव मैसेज्ड यू एज Damn, वेल। तो bro. One call closes. I was getting messages. Shashank, this या one call close. या Sahi. Nice, bro. Nice. Keep the momentum up, bro. ठीक है. या Just one last thing before we wrap up. Let's say if somebody is watching this thing अभी तक and they are still not sure कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, should they work with us or not? So what would be your recommendation to them? द बेस्ट रिकमेंडेशन वुड बी ब्रो कि देखो, मैं तो आपको ये चीज़ मतलब डायरेक्टली भी बोल दो कि आपको करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, राइट। बट इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इस चीज़ों को, अगेन लाइक एज आई मैंशन कि आपके पास दो ही रास्ते हैं, राइट। आप खुद से अपने खुद के पैसे जला के करना चाहते हो, खुद के 3-4 साल इस पे दे के करना चाहते हो, या फिर यू वांट टू लर्न फ्रॉम द मेंटर जिन्होंने वो ऑलरेडी उस जर्नी को कवर कर रखा है, जो ऑलरेडी जहाँ पे है, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो ऑलरेडी। तो हम्म। एज आई सेड लाइक अर्लियर ऑल्सो, व्हेन वी वर ट्रेनिंग, राइट, व्हेन वी वर डूइंग दैट थिंग, तो मैंने आपको बोला था, मतलब आप जहाँ पे उस टाइम क्लोजिंग करते थे, तो आई वांट टू रीच देयर, तो आई हैव लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग्स फ्रॉम यू। दैट इज द सेम थिंग, मतलब जिसको वो चीज़ पूरी जर्नी कवर करना है, तो एक सिंपल सा चीज़ है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी है आप उनसे सीखो, हम्म। तो वो सारी जर्नी ईजी हो जाती है एंड एवरीथिंग। एंड इन अ सिंपल वर्ड अगर मैं वो चीज़ बताऊँ, तो द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू कैन अफोर्ड दिस, यू हैव टू डू दिस। टाइम मनी, मतलब आपका पैसा टाइम, बहुत चीज़ें सेव होगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपको एक गाइडेंस मिल जाता है, मेंटोर मिल जाता है थ्रू आउट, जो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ें पे आपको बताते रहे क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, एंड कैसे इंप्रूव करना है। तो वो काफ़ी हम्म। ज़्यादा प्रोसेस लर्निंग फास्ट हो जाती है। Awesome. This was good, Shanu. Thank you. Thank you for your time. थैंक यू सो मच। And I hope future में you get more sales. Momentum को सही रखो. 5 आए हैं. Let's aim for 10 this month. श्योर And श्योर। बढ़िया कमाओ पैसे. यस Make ब्रो, more यस। offers, man. Make more offers. Whatever you're selling, make more offers. You know? Cool, bro. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच Let's सुशांत। end this. ब्रो मतलब